Hello everyone. So today we'll discuss about another topic in abnormality in newborn, that is malformation in newborn. Okay. So first of all, what's the meaning of the malformation in newborn? That is a congenital abnormality. Generally, it can be defined in whether it is a structural abnormality or whether it is the functional abnormality. So, for example, metabolic abnormality and hearing defect in late infancy life we will identify. Okay, so generally these abnormality we will find out at the time of the birth, at the time of the prenatal, or in a later infancy life. Okay, this I told you that hearing defect. Okay, now there's a list of malformations, the abnormalities in newborn, that is the anencephaly. Okay, next one the microcephaly, megalencephaly, stepto-optic dysphasia, diastomatomyelia, polymicrogyria, encephalocele, and the spina bifida. So these are the list of congenital malformation. Today we'll discuss one by one this. Okay, and that the first one is the anencephaly. So anencephaly is a cephalic disorder that results from a neural tube defect that occurs when the cephalic, that means the head end of the neural tube, fail to close usually 23 to 26 week of pregnancy, and that resulting in the absence of the major portion of the brain, skull, and the scalp. Okay, तो व्हाट इज द एनसेफेली? एनसेफेली जनरली क्या होता है, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब फेल हो जाती है 23 टू 26 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में। आपको पता होगा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट क्या होता है, क्लोज हो जाता है 26 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में। न्यूरल ट्यूब जो न्यूरल ट्यूब्स होती है वो क्लोज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है 23 और 26 डेज ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हो पाती, इज फेल टू क्लोज, जिसकी वजह से क्या होता है कि एब्नॉर्मलिटी राइज होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एब्सेंस होते हैं मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, स्कल और स्कैल्प। So, in that the presentation is the National Institute of the Neurological Disorder and the Stoke NINDS described the presentation of this condition as follow. In that a baby born with the anencephaly is usually the blind, okay, deaf, unconscious, and unable to feel the pain just because they are the undeveloped, or the majority of the portion of the brain, skull, and scalp are absent. Due to of that, the baby are born with the abnormality like a blindness, okay, deafness, unconscious baby, and unable to feel any kind of stimuli of pain. Okay, the symptom of the anencephaly baby is the absence of the skull, absence of the brain, the cerebral hemisphere, and the cerebrum, the facial features abnormalities, cleft palate, congenital heart defect. So how you will diagnose the baby having a congenital abnormality? So during time of the prenatal time or the antenatal time, you have to done. This is actually the compulsory. You have to done the ultrasound. Okay, ultrasonography, amniosynthesis. Amniosynthesis generally we have done in between the 15 to 20 week of gestation. Then alpha fetoprotein level, also we have to check the alpha fetoprotein level for find out any congenital abnormality in between to 16 to 18 week of gestation. यूरिन एस्ट्रियोल लेवल, यूरिन एस्ट्रियोल लेवल भी क्या करते हैं हम ब्लड टेस्टिंग से फाइंड आउट करते हैं। That is it between the 9th week of pregnancy. Pre-pregnancy serum folic acid test. Okay, so pregnancy से पहले ही folic acid का level हमें check करना है, because these defect will be due to the deficiency of the folic acid. Okay, now what are the management for the anencephaly? The first one, there is no any treatment for the anencephaly. Always we have to treat to support, and whatever the symptoms will be जो symptom आ रहे हैं हम symptomatic treatment patient को देते हैं, ठीक है, babies को देते हैं। So treatment is only on the supportive treatment. The folic acid can be reduce the risk of certain birth defect. So mother को generally we will advise to the mother, you have to take the folic acid tablets if they having a history of birth defect, any congenital previous history of the congenital abnormality in a baby, okay, previous baby. It is important for the woman who become pregnant to get enough folic acid, because मैंने आपको ड्रग्स में बताया था, the folic acid is very important especially in a first trimester. Okay,
Then the multivitamin with the folic acid should be taken every day by the pregnant women and the women planning for the pregnancy. So जो आपके new married couples हैं, generally we're advised to the new married couple at the time of the counseling, if you plan for the conceiving, so first of all you have to done your screening and to find out especially the folic acid, iron, the calcium. These are the essential elements during time of pregnancy. If you're having a deficiency, then means before the conceiving also you have to start these elements. So you have to maintain your health and prevent these deformities and this deficiencies. Okay, the multivitamin folic acid should be taken every day. Pregnant women who are planning for the pregnancy, getting enough folic acid can be reduce the chance of neural tube defect by 50%, because all the neural tube defect, not only for the deficiency of the folic acid, it may be the mutation in the genes at the time of the fusion, or if the mother are exposing a different kind of the toxic effect like alcohol, if the mother are taking the smoking, alcohol, any drugs, these are also a cause of the different kind of congenital abnormality. Okay, so 50% of the abnormality will be get by the baby through the deficiency of folic acid. Okay, now the microcephaly, another congenital abnormality is a microcephaly. So microcephaly means micro means small, cephaly means your head. Okay, जिसमें कहते हैं head आपका small होता है. This is your normal head, this is your microcephaly head. Okay, now the microcephaly, the term microcephaly means a small head. Okay, microcephaly is a rare neurological condition in which the infant has significantly smaller than normal head. Okay, जिस आपको pictures में दिखाया है, size because the brain has not developed properly or has a stopped growing. क्योंकि brain क्या करता है, properly develop नहीं हो पाता या फिर grow नहीं कर पाता. ठीक है. So what are the cause behind that particular disease condition? In that, the microcephaly can be caused by the exposure of harmful substances during the fetal development. Okay, the fetal क्या कहता है development होता है. If the mother are exposing any kind of the substances like alcohol है या फिर mother कोई drugs ले रही है, कोई भी toxic substance ले रही है, जिसे directly क्या है जो placental cross करके fetal में affect कर रहा है. The following may predisposing a fetal to problem affected the other development of the head during pregnancy. The exposure of the hazardous chemical. ठीक है, अगर मदर के hazardous chemical expose कर रही है, जैसे for example mother are working in a company area where जहाँ पर daily क्या कहते हैं chemical exposures होते हैं, या फिर mother intake कर रही है chemicals क्या, ठीक है. methyl mercury poison, lack of proper vitamin and nutrients in a mother diet. अगर mother की diet में proper vitamins नहीं है, nutrients नहीं है, so it is another cause of the microcephaly. Okay, the cytomegalovirus, rubella, and the varicella zoster virus also cause of the microcephaly. If the mother exposure during time of pregnancy, any kind of these infections, okay, any kind of these viruses infection. The legal drug and alcohol consumption. मतलब क्या करती है, illegal drugs लेती हैं, which are not actually allowed during the time of pregnancy, or which are creating the teratogenic effect on the mother health. Okay, mother health is the baby health actually. Okay, untreated phenylketonuria. So actually the phenylketonuria, इसमें क्या होता है, it actually is an inherited disorder. Okay, increase in the level of substance that is called the phenylalanine. ठीक है, जबकि हमारी बॉडी में phenylalanine क्या होता है, ब्लड में इंक्रीज जाता है. ठीक है, तो ये डिसऑर्डर क्या होता है, हमें प्रेजेंस होता है. जनरली ये क्या करता है, ये बिल्डिंग करता है ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स का. ठीक है, जो जनरली क्या करते हैं, हमें डाइट से मिलता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉकर्स है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉकर्स है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इंक्रीज जाते हैं, तो ब्लड में क्या होता है, एक सब्सटेंस जिसे हम फेनाइलएलानाइन बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे ही डिसऑर्डर होता है. ठीक है, और इसकी वजह से बेबीज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी सच एज द डाउन सिंड्रोम. तो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशन हुई है जीन्स में, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी मैंने आपको बताया था क्लास में, नंबर क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इन अ नंबर और साइज एंड शेप में. ठीक है, now the clinical manifestation depend upon the severity of the symptom. Okay, the baby head is very small, mental retardation, delay motor function, speech, increase the movement of arm and leg, facial distortion. ठीक है, and then hyperactivity,
सीजर्स हो सकते हैं, डिफिकल्टी विद द कोऑर्डिनेशन बैलेंस, गेट नॉर्मल नहीं होगा बेबी का, ठीक है, other brain and neurological abnormalities, then the poor feeding, developmental delay, intellectual disability. So these are the many clinical manifestations. Okay, then the diagnostic evaluation is the birth and family history. So first of all we had to collect the history from the mother. अगर mother आपके पास लेट आई है बेबी के बर्थ की, फॉर एग्जांपल 1 or 2 months के बाद आई है, तो यू हैव टू कलेक्ट द बर्थ हिस्ट्री. ओके, अगर मदर की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है और बेबी डिलीवर्ड हुआ है माइक्रोसेफेली, then you have to collect the mother previous birth history, the family history, okay, and exposure of any kind of substance abuses. Okay, then you have to do the physical examination of the mother, the prenatal ultrasound. You have to buy the prenatal, antenatal ultrasound means antenatal time पे अगर mother का ultrasound करते तो easily we have to find out the abnormality. Even though during the time of pregnancy also we have to find out these kind of abnormality. Okay, for example mother आपकी 35-year-old है, the time generally we are doing some congenital abnormality screening test, okay, like aminocentesis, cord blood sampling, okay, and cord blood sampling. Then the head CT and MRI, we will done the head CT and MRI for the baby. Blood and urine tests will send to the laboratory. Okay, then so what is the management for the microcephaly? Generally there is no any treatment for कि हम means head को दोबारा से enlarge कर सकते हैं या फिर उसको reverse लेके आ सके complication को, but yes we will provide a supportive and symptomatic management to the baby. In that we have to provide the physical means we have to physicians, जो थेरेपिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनसे क्या कहते हैं आप हेल्थ चेकअप करा सकते हो, स्पीच थेरेपी दे सकते हो, थेरेपिस्ट से ऑक्यूपेशन थेरेपी दे सकते हो, ठीक है. इट्स हैव टू मैक्सिमाइज एबिलिटी एंड मिनिमाइज द डिसफंक्शन. क्या करता है एक पर्सन की एबिलिटी को इंक्रीज करता है और डिसफंक्शन को मिनिमाइज करता है. मेडिकेशन कैन आल्सो यूज टू कंट्रोल सीजर. अगर बेबी को सीजर्स आ रहे हैं तो मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं. हाइपर एक्टिविटी एंड न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम्स के लिए भी आप मेडिकेशन दे सकते हो. जेनेटिक काउंसलिंग आल्सो मे हैव टू फैमिली अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ माइक्रोसेफेली सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी. फॉर एग्जांपल तो मदर की ऑलरेडी प्रीवियस हिस्ट्री है माइक्रोसेफेली की, so we are do the genetic counseling. genetic counseling क्या होती है आपके prenatal, internatal and postnatal counseling होते हैं genetic counseling. ठीक है, prenatal यानी antenatal time में, internatal यानी during the time of pregnancy and postnatal यानी pregnancy के डिलीवरी होने के बाद हम क्या करते हैं काउंसिल करते हैं. so it's depend upon the situation. अगर antenatal mother है उसका antenatal time पे diagnosed हुआ है कि बेबी को माइक्रोसेफेली है, तो we are advised to the parents how you will deal to the baby. ठीक है, एंड अगर इंटरनेटल टाइम में है तो हम इससे एक्सप्लेन करेंगे, पोस्टनल टाइम में तो किस तरह से केयर करनी है एंड ऑल दिस थिंग वी हैव टू एक्सप्लेन टू द मदर और द पेरेंट्स. ओके, एंड ऑल्सो इन द एंटीनेटल टाइम अगर मदर 3 मंथ से पहले आई है और बेबी में this kind of abnormality, not the microcephaly but for for anencephaly and like other congenital abnormalities. So in that it's the choice of the mother whether they want to continue this pregnancy or whether they want to discontinue the pregnancy. We are just advising to the mother by the counseling. Now the another one is megal encephaly. Okay, sorry, Magellan encephalopathy. So Magellan encephaly called the, it is the condition in which there is an abnormal, large or heavy, usually malfunctioning brain. इसमें क्या होता है हमारे heavy और large abnormal malfunctions होते हैं brain में. The brain weight is greater than the average of the age and greater the individual. जो normal head का size और shape होता है और जो weight होता है उसकी क्या होता है larger होता है Magellan encephaly में. Okay, it may be the visible at the birth, at the head may become the abnormally large in early year of life. तो ये आपको इजीली अर्ली ईयर लाइक जैसे जैसे बेबी ज्यादा डेवलप होता है 2-3 मंथ का होता है तो आपको देखने जाएगा बेबी का हेड क्या है लार्ज है एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल बेबी हेड. ओके, द कॉजेस ऑफ द जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर इन देन Magellan encephaly may occur in the autosomal
डोमिनेंट, मोर कॉमन और द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंस होते हैं जनरली, डोमिनेंस वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं अपनी ईच जनरेशन में अपने इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। और रेसेसिव वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो करते हैं जब रेसेसिव रेसेसिव से मिलता है तब जाके वो अपनी डोमिनेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर में जनरली क्या होता है, मेगालेंसेफ्लाई में जो के डोमिनेंस होते हैं रेसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंस होता है, दे आर द मोर कॉमन, ओके। द सोटो सिंड्रोम, ओवरग्रोथ सिंड्रोम, इसमें कहते हैं ओवरग्रोथ होती है। देन अलेक्जेंडर डिजीज, so this is Alexander disease, actually is a disorder of the nervous system. It is a one of the group disorder leukocytophies that involve the dysfunctioning of the myelins, ठीक है। तो अलेक्जेंडर डिजीज में क्या होता है कि ल्यूकोसाइटोट्रॉफी होती है। ल्यूकोसाइटोट्रॉफी में क्या होता है, जो हमारे ल्यूकोसाइटोप्रीन्स होते हैं जो क्या होते हैं जिसमें उसमें क्या होता है डिसफंक्शनिंग आती है, जिससे क्या होता है हमारे माइलीज एक जो लेयर होती है, एक जो स्मॉल लेयर्स होती है, ठीक है, प्रेजेंस होती है, उसमें क्या होती है डिसफंक्शनिंग होती है। देन the chromosomal abnormality such as the Klippner syndrome. Okay, one more thing in the Alexander disease, leukocytotrophy. जनरली क्या आता है, मैंने आपको बोला इस डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन सीट, ठीक है। तो माइलिन सीट क्या होता है, फैटी कवरिंग सीट होती है, ठीक है, जो हमारी जो ब्रेन की जो नर्व फाइबर है उसे कवर करती है, जिसमें क्या होता है अबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम रोजेंथल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जिससे अलेक्जेंडर डिजीज के जो बेबीज होते हैं वो 2 ईयर्स से बिफोर हम कहते हैं इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी सच एज द क्लिपरटन सिंड्रोम। तो क्लिपरटन सिंड्रोम का हम आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, एक्सोम हेरिटेज डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें क्या होती है एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम्स की, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, जनरली ये मेल को अफेक्ट करती है और 75% जितने भी आपके पेशेंट्स होते हैं 75% हम आइडेंटिफाई कर देते हैं इसमें, और 25% मेल ऐसा होता है जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया सकता whether they having presence of this Klippner syndrome or not, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है, और फीट फ्लैट होते हैं, डिले होती है इनकी मोटर स्पीच एंड स्किल डेवलपमेंट डिले होता है। जनरली क्या होता है, ऐसे पेशेंट में डिप्रेशन होता है, ठीक है, और इनके अटेंशन डेफिसिट्स होते हैं, ओके। Now the genetic, non-genetic disorder is, for example, transient disorder of the cerebrospinal fluid, and it can be idiopathic. तो इसका ये idiopathic means होता है unknown cause या फिर जो spontaneous जो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और transient disorder क्या है आपका, cerebrospinal fluid lymphosis. It is a headache disorder in which the individual experience severe to moderate headache attack, neurological symptom, increase amount of the WBC or the spinal cord, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, हमारी जो WBC होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, पेशेंट को जनरली ना हेडेक के अटैक्स होते हैं सीवियर टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इफ द so the clinical manifestation is a developmental delay, ठीक है। Then seizures, convulsion disorder, abnormal brain cortex, spinal cord, mental retardation is common, megalencephalopathy. In some neurological symptoms like delayed motor milestones such as holding the head, rolling over, speech delay, poor muscle tone, body asymmetrically body होती है, ठीक है, paralysis of the more both side of the body, then the poor coordination, gait proper नहीं होता, ठीक है, involuntary movements होते हैं, visual disturbances होते हैं। So these are the clinical manifestations of the megalencephaly. Now the diagnostic evaluation. So how, first of all, in any kind of disease condition, you have to collect the history from the mother. Okay, so at the time of antenatal period, you have to collect the history. Mother internal में आई तो internal में करोगे, postnatal में आएगी तो you have to collect the history regarding their family history. Okay, because congenital abnormality, it may be a hereditary factor or it may be mother ने कोई exposure किया और किसी toxic substances का, ठीक है, environmental factor हो, या फिर मदर नहीं कोई सब्सटेंस अब्यूजेस इनटेक करती हो ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू एग्जामिनेशन, यू हैव टू डन डेवलपमेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके, डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है कि आप
जैसे न्यूबॉर्न बेबी में आप रिफ्लेक्सेस वगैरह देख सकते हो, उसका न्यूबॉर्न उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है। देन सीटी स्कैन एमआरआई के थ्रू दे सकते हो। लेबोरेटरी टेस्टिंग फॉर जेनेटिक एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, लेबोरेटरी टेस्टिंग सेंड कर सकते हो आप, एंटीना टाइम पे भी कर सकते हो और डिलीवरी के बाद भी कर सकते हो, ठीक है, बेबी का। देन जेनेटिक और क्रोमोसोम डिसऑर्डर, क्रोमोसोम डिसऑर्डर जनरली जो मदर्स 35 ईयर ओल्ड होती हैं, हमने एडवाइस करता है जेनेटिकली, दे हैव टू फर्स्ट दे हैव टू डू देयर स्क्रीनिंग बिफोर द कंसीविंग, आफ्टर द कंसीविंग एंड इन बिटवीन द कंसीविंग एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बर्थ हम बेबी में स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। नाउ द मैनेजमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर फॉर द मैलिक एंसेफेलाई, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम, जो रूटीन हेल्थ केयर होते हैं वही हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें फॉर द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फॉर सीजर का सीजर, यानी कि जो भी सिम्टम्स बेबी में अराइज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन से लेके हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिव्यू करते हैं और सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, को भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपसे ट्रीटमेंट दोगे। रिहैबिलिटेशन फॉर द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज स्पीच डिले, पुअर मसल टोन के लिए आप उसे थेरेपी दे सकते हो। ना तो सेप्टो ऑप्टिक डिस्प्लेजिया, सेप्टो ऑप्टिक डिस्प्लेजिया is a rare disorder characterized by the abnormal development of the optic disc, pituitary deficiency, and often the agenesis of the septum pellucidum, ठीक है। तो सेप्टल ऑप्टिक डिस्प्लेजिया क्या है, एक रेयर डिसऑर्डर होता है जनरली बेबीज में, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जो आपकी सेप्टिक डिस्क होती है, ठीक है, जो क्या होती है रेटिना से कनेक्ट होती है और आपकी आई के बैक साइड में एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। पिट्यूटरी डेफिशिएंसी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, एंड एजेनेसिस ऑफ द सेप्टम पैलुसिटा। तो सेप्टम पैलुसिटा में क्या होती है, मिसिंग फॉर्म होती है आपके, नली आपके मिडिल ऑफ ब्रेन में प्रेजेंस होता है, तो उसमें एजेनेसिस होती है, तो मिसिंग दैट इज द मिसिंग फॉर्म एंड इट्स नॉर्मल जनरली पोजीशन इन द मिडल ऑफ अ ब्रेन, ठीक है। तो जब मिसिंग फॉर्म प्रेजेंस होता है, पिट्यूटरी डेफिशिएंसी होती है, ये ऑप्टिक जो डिस्क होती हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज होती है, तो सेप्टिक ऑप्टिक डिस्प्लेजिया होता है, ओके। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, कि whether it is organ or the tissue में। Now the cause is the idiopathic I told you that is unknown causes या फिर spontaneous जो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। यंग मैटरनल एज, अगर क्या है यंगस्टर एज में डिलीवर्ड हुआ है, टीनेजर प्रेगनेंसी अगर है तो प्लीज। देन फैमिलियर रिकरेंस ऑफ द एटलीस्ट वन जेनेटिक फॉर्म, ठीक है, अगर फैमिली रिकरेंस है यानी कि पहले भी अगर किसी में वो प्रेजेंस है। रिस्क फैक्टर, मैटरन अगर स्मोकिंग करती है ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अल्कोहल कंजप्शन किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी एडिटिव ड्रग्स ली हैं अर्ली जेस्टेशन पीरियड में, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में, ओके। नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऑप्टिक नर्व डिस्प्लेसिया, nystagmus, inward and outward deviation of the eyes, pituitary deficiency, hypoglycemia, jaundice, severe mental retardation, seizure, brain impairment, and the hypotonia. मैनेजमेंट में हार्मोनल रिप्लेसमेंट करते हैं, बिकॉज पहले की वजह से पिट्यूटरी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन जो भी डेफिशिएंट है उसको रिप्लेसमेंट करते हैं हम। विजन, फिजिकल और ऑक्यूपेशन थेरेपी हम रिक्वायर करेंगे विजन के लिए, विजन भी करेंगे और फिजिकल भी करेंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। द ब्रेन इम्पेयरमेंट इज सिग्निफिकेंट, अगर ब्रेन इम्पेयरमेंट है तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ द डायस्टोमेटोमाइलिया, ठीक है। डायस्टोमेटोमाइलिया जनरली क्या होता है, जबकि जो वर्टिब्रास होती है ना उनमें क्या होता है, स्प्लिट हो जाती हैं वर्टिब्रा, जनरली क्या होता है अपर पोर्शन से स्प्लिट हो जाती है वर्टिब्रा लाइक दैट, ठीक है। और यानी स्प्लिट यानी कि उनमें ब्रेक आ जाता है, ओके। बट ब्रेक आने के बाद भी क्या होते हैं, वो आपके डिस्टल एंड से क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं, और कभी कभी क्या होती है डिस्टल एंड से अटैच नहीं होती, वो टू पार्ट में कन्विंस डुप्लीकेशन में आती है, सर डिप्लोमाइलिया बोलते हैं, ओके। सो डिसएस्टोमाइलिया,
diastrophysiology actually sir. Diastrophysiology is a condition, is a congenital abnormality disorder, especially which the part of the spinal cord is split. The spinal cord क्या होता है, split हो जाती है, split यानी break हो जाती है. So usually at the level of the upper lumbar जो vertebra होती है उसमें क्या होती है, spinal cord split हो जाती है, break हो जाती है, ठीक है. The particular malformations are complete or the partially. जो ये split और break होने की malformation है, ये कहते हैं complete भी हो सकती है या partially हो सकती है of the spinal cord और into two separate hemichords, ठीक है. और कहते हैं two separate hemichords में क्या होती है, वो convert हो जाती है, ठीक है. The separated usually occur in the middle of the spinal, जितनी जो separated हैं वो middle of the spinal cord में होती हैं, and the hemichords रीयूनिट होती है below it. नीचे से क्या होती है, रीयूनिट होती है, ऊपर से क्या होती है, दो हेमिकॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, बट डाउन से क्या होती है, वो रीयूनिट होती है, ओके. When the split do not reunit distally to the spot, the condition is referred to a diplomylia, ठीक है. जब भी क्या होती है, रीयूनिट नहीं होती है डिस्टल एंड से, तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोमाइलिया. अंडरस्टूड. डायस्ट्रोमेटोमाइलिया, बाय डायस्ट्रोमेटोमाइलिया की कंडीशन है जिसमें स्माइल कॉर्ड क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्प्लिट हो जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाती है अपर लंबर वर्टिब्रा से, ठीक है. सेपरेट हो जाती है टू पोर्शन में, पार्शियली और कंप्लीटली, जिसे हम बोलते हैं हेमिकॉर्ड. ये हेमिकॉर्ड जो होती है वो मिडिल तक क्या होती है, आपकी सेपरेटेड होती है, और जो रीयूनिट होती है वो बिलो एंड से रीयूनिट रहती है, ठीक है. बट कभी कभी क्या होता है, रीयूनिट नहीं होते, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमाइलिया, ओके. सो व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन दैट द साइन एंड सिम्टम में अपील एट द टाइम ऑफ द लाइफ. जैसे जैसे बेबी क्या होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर्स होते हैं, ठीक है. जैसे क्यूटेनियस cutaneous lesions. तो cutaneous lesion क्या होते हैं आपके, इससे localized inflammation and benign tumors होते हैं, ठीक है. आपके सच है सबके hairy patches, जहाँ पे आपकी की lesions होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, hairy patches होता है. जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे ये lesion break हुआ होगा, वहाँ पे क्या होगा, hairy patch होगा, यहाँ पे hairs presence होगी, ठीक है. particular patch kind of thing, पैच होगा, जैसे बंगाली का पैच होता है ना, ऐसे एक पैच होता है, वो ब्राउनिश या रेडिश या ब्लैकिश कलर में होता है, और उसमें हेयर्स होता है काफी, ठीक है. डिम्पल प्रेजेंस होता है वहाँ पे. हेमेंजियोमा, सबक्यूटेनियस मास, लिपोमा, ट्रेटोमा, ओवरराइड अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्पाइन इज फाउंड, ठीक है. तो क्यूटेनियस लीजन में आपके एक तो हेयरी पैचेस होता है, दूसरा आपका डिम्पल होता है, तीसरा होता है आपका हेमेंजियोमा. तो हेमेंजियोमा क्या होता है, एक ब्राइट रेड कलर का मार्क होता है, ठीक है. और जनरली क्या होता है, आपके फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ लाइफ में ही क्या होता है, शो हो जाता है. ब्राइट रेड या फिर पर्पल कलर का एक मार्क होता है, ठीक है, जो आपके एट बर्थ टाइम से प्रेजेंट रहता है, और जनरली के फर्स्ट फ्यू वीक या फिर फर्स्ट सेकंड वीक में लाइफ ऑफ अपीयर हो जाता है, ठीक है. ये एक रबड़ी बम्प टाइप ऑफ मार्क होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा रेड ब्रेसेस प्रेजेंस होती है स्किन में, ठीक है, इसलिए ये रेडिश कलर का दिखाई देता है. नेक्स्ट वन है सबक्यूटेनियस मास, तो पता होगा लिपोमा. लिपोमा क्या होता है, लिपोमा तो पता होगा, पर लंप अंडर द स्किन ड्यू टू द ओवरग्रोथ ऑफ द फैट सेल्स. जो कि फैट सेल्स होती हैं उनमें ओवरग्रोथ होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्किन के अंदर कहते हैं ओवरग्रोथ होती है, जिससे हमसे लंप होते हैं, दैट्स कॉल्ड लिपोमा, ओके. तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं क्यूटेनियस रीजन्स में, ठीक है. Then the neurological symptoms में क्या आता है, आपके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं. अटैचमेंट दैट लिमिट द मूवमेंट नहीं कर पाता, लिमिट मूवमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द स्पाइनल कॉलम, ठीक है. ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे बेबी जैसे जैसे ग्रो करेगा वो क्या मूवमेंट नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से. जैसे हमारी बॉडी के जैसे जनरली क्या होता है, बेबी की बॉडी फ्लेक्स्ड होती है, तो कंप्लीटली फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है. There is the attachment causes of the abnormal stretching of the spinal cord. Foot and spinal deformity, weakness in the leg, low back pain, sclerosis तो पता होगा, साइड कर्व होती है जो बैक में साइड कर्व आता है, साइड पे कर्व आता है, ठीक है. मिडिल में नहीं आता, साइड कर्व आता है इसमें. incontinence whether the bowel incontinence whether the urine incontinence, okay. In adulthood, sign and symptom often including the progressive sensory motor problems, loss of bladder and bowel control, ठीक है. जैसे स्पाइन में भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि स्पाइनल कॉर्ड विद इन द स्पाइनल कॉलम. तो क्या होता है, ऐसे जो बेबीज होते हैं ना, उन्हें रनिंग करने में और बार बार अपलिफ्ट करने में, या फिर मींस जल्दी फास्ट वॉकिंग करने के लिए, जंपिंग करने के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं.
ठीक है ना। द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप एक्सरे के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो, एमआरआई कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर during time of pregnancy. If you are conducting ultrasound in third trimester, then you have to find out that these deformity are present in a baby. Okay, so now the what is the management? Symptomatic management. Symptomatic management का मतलब है आप जो डिफॉर्मिटी है वी कांट हम उसे क्या करते हैं ट्रीट नहीं कर सकते, तो सिम्टोमेटिक जो से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी सिम्टम्स बेबी में आ रहे हैं, हम उसके करते हैं मैनेज करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग द decompression of the neural element and remove of the bony spore, जो bony spore होता है उसे remove कर देते हैं, ठीक है। then the polymicrogyria, ठीक है। so polymicrogyria is the PMG, the disorder of the neural migration resulting in the structural malformation of the human brain, characterized by the excessive number of the small contusions on the surface of the brain, ठीक है। और आपका ओके, सो पीजीएम जनरली सरफेस ऑफ द ब्रेन का मतलब होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो क्या होता है एक रिंग्ड होता है, आपने देखा रिंकल्स होता है ना सेरेब्रम हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है एक्सेसिव नंबर ऑफ द स्मॉल कन्वोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द ब्रेन में, जो एक्चुअली जनरली हमारे प्रेजेंस होता है, पर वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पहली माइक्रोजीलिया, जिसकी वजह से क्या होता है ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर उसमें मालफॉर्मेशंस होती है, आइदर द होल सरफेस, चाहे वो होल पार्ट जितना भी आपका ब्रेन का जो ब्रेन सरफेस का होल पार्ट है, होल पार्ट में भी कवर हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रेन के सरफेस में वो प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है। द कॉज इज अननोन, इडियोपैथिक है। Other responsible factor are the infection during the pregnancy, lack of oxygen, genetic causes, ठीक है, जेनेटिक कॉजेज हो सकता है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मदर आर एक्सपोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, ओके, जैसे साइटोमेगालोवायरस है, रुबेला है, ठीक है। The sign and symptom is developmental delay, इससे क्या होता है बेबी का डिले डेवलपमेंट होता है, फीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशंस, ओके, लाइक दैट, दिस वन, जैसे ऑलरेडी क्या होता है आपका ब्रेन सरफेस है, दैट इज कॉलिंग अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो क्या होता है रिंग्ड होता है, इसमें कहते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ रिंग प्रेजेंस होती है, कि रिंग एक्चुअली क्या करती है, ये हेल्प करती है हमारी जो नर्व फाइबर्स होती हैं ब्रेन में फिट होने के लिए, और जो बंचेस ऑफ नर्व फाइबर्स होती हैं इस शेप से क्या होता है वो इजीली क्या होता है ब्रेन में फिट हो जाते हैं, इस शेप को, इससे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्राइडिंग, एक्चुअली एक और ये आपका क्या है पूरा, सॉरी, ये आपका पूरा कन्वॉल्यूशंस है, ये पूरा कन्वॉल्यूशंस है, कन्वॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, ये स्पूसी और गायरी, ओके, इसे हम ग्रूव भी बोलते हैं। एनीवे, देन एनसेफेलोसील ऐसे बोलते हैं क्रेनियम बिफिडम, ठीक है। तो एनसेफेलोसील is also neurotic defect affected by the sac-like protrusions of the brain and the membrane that covered through the opening in the skull, like this, ये आपके एक पर्टिकुलर ओपनिंग है स्कल की, जहाँ से एक sac-like things क्या हुई है प्रेजेंस हुई है, so this is a protrusion of the brain and the membrane that covered through the opening in the skull. These defects are caused by the failure of the neural tube defect close completely during the fetal development. जब fetal development होता है तो neural tube क्या होती है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती है, और उसके ऊपर क्या होता है एक मेम्ब्रेन कवर अप हो जाती है, और जहाँ से वो पार्ट ओपनिंग होती है वो क्या होता है वो पार्ट प्रोट्रूड हो जाता है, लाइक दैट, यहाँ से क्या हुआ प्रॉपर्ली न्यूरल ट्यूब क्या हुआ क्लोजिंग नहीं हुआ, और यहाँ से क्या अनदर पार्ट प्रोट्रूड हो गया, जो एक पर्टिकुलर थिन मेम्ब्रेन से क्या है कवर अप है, ठीक है। The classification is the nasofrontal, the present in the nose and forehead, ठीक है, इसमें क्या होता है nose and forehead presence होता है, nasoethmoidal present in the nose and ethmoid sinus, ठीक है, यानी कि एथमोस जो नोज की जो वॉल है एथमोइड है
एथमोइड साइनस है, ये भी क्या होता है, कवर अप करता है इसके साथ में, यानी ये फेशियल डिफॉर्मिटी भी करता है, ठीक है। नेजो ऑर्बिट प्रेजेंट इन द नोज एंड आई, जो आई वॉल्स होती हैं, जो नोज वॉल्स होती है, वो भी क्या होती है, इसमें प्रेजेंस होती है। एनसेफेलोमेनिंजियोसिस, इफ द ब्रेन टिश्यू इज आल्सो इन्वॉल्व, अब ब्रेन का टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें बोलते हैं एनसेफेलोमेनिंजियोसिस। मेनिंजियोसिस, इफ बल्जिंग पोर्शन कंटेन ओनली सीएसएफ एंड ओवरलाइडिंग मेम्ब्रेन, अगर क्या होता है इसमें सिर्फ जो आपका जो ये प्रोड्यूजन है, ठीक है, इसमें सिर्फ अगर आपके पास सीएसएफ है या फिर ओवरलाइंग मेम्ब्रेन्स है तो उसे बोलते हैं मेनिंजियोसिस, ठीक है। जनरली क्या होता है, इट इज अ रेयर डिजीज कंडीशन, ठीक है। जनरली क्या होता है, विच इज द बोन स्कल डू नॉट क्लोज द कम्प्लीटली, हमारी जो बोन स्कल होता है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता और एक स्मॉल सा गैप आ जाता है सेरेब्रल स्पाइन, जिसमें क्या होता है हमारा एक्चुअली जो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल न्यूरोट्यूब डिफेक्ट से क्लोजिंग नहीं हुई, ये ओपनिंग हुई, और ये क्या होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना दिया है, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया कवर करता है, जैसे नोज का, स्फेनॉइड का, या फिर हमारे मेनिंजियोसिस का या ब्रेन का जो टिश्यू होता है इसमें होता है, ठीक है, प्रेजेंस होता है। तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली इस सैक में क्या प्रेजेंस होता है हमारे, इसमें मेनिंजिस लेयर होती है, ठीक है, और इसमें टिश्यू होते हैं, ब्रेन टिश्यू प्रेजेंस होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंस होता है, जो क्या करता है सैक लाइक फॉर्मेशन करता है, ठीक है। Clinical manifestation is the neurologic problem, hydrocephalus, microcephaly, ataxia, developmental delay, vision problems, mental and growth retardation, and the seizures. In a surgical management, क्या करते हैं, जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं और करेक्ट करते हैं क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटी, जो भी फेशियल एब्नॉर्मलिटी है, जैसे नोजल वॉल या फिर आपकी स्फेनॉइड में जो आपकी ऑप्टिक वॉल, जो साइड की जो वॉल है वो जो इन्वॉल्व है, उसको मतलब उस एब्नॉर्मलिटी को हम बाय सर्जिकल मैनेजमेंट नॉर्मल करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पाइना बैफिडा. Spina bifida is a neural tube defect caused by the failure to the fetal spine to close the properly during the first month of pregnancy. तो first month of pregnancy का neural tube close नहीं हो पाती है, तो spina bifida होता है उससे, ठीक है। So spina bifida, there is a types of spina bifida: closed neural tube defect, spina bifida occulta. Okay. Then the spina bifida manifesta, spina bifida meningosis, meningomyositis. So this is your spina bifida occulta, spina bifida meningosis, spina bifida meningomyositis. Okay. So spina bifida occulta means it is one of the most common form in which one or more vertebra are malformed. जिसमें एक या एक से ज्यादा vertebra malformed होती है उसे बोलते हैं spina bifida occulta. Occulta का means होता है hidden, indicate that the malformational opening in covered by the layer of skin. जो malformation या opening हुई है वो क्या है, एक layer से क्या होता है, skin के layer से cover up होती है, hidden होती है वो, ठीक है। symptoms में क्या होता है, जैसे bowel and bladder problems होते हैं, incontinence की problems होती है, ठीक है, या sclerosis, यानी जो spine का जो curve होता है वो क्या होता है, side way होता है, ठीक है। Next है closed neural tube defect. Closed neural tube defect मतलब it is the second type of spina bifida. In Andres, the spinal cord is make a malformation of the fat bone of the membranous. क्या होता है इसमें, क्या होती है, malformation जो होती है जो fat bone में होती है या फिर membranous में होती है। जनरली symptoms में क्या होता है, urinary bowel and bladder dysfunction के आते हैं। Spina bifida manifesta. So it is associated with the nerve damage that can result the problem like walking, bladder control, and coordination. It can be spread into the classes. Okay. So spina bifida manifesta क्या है, तो ये होता है हमें डैमेज जो आती है हमारी नर्व, जिससे हम वॉकिंग करने में, रनिंग करने में, ब्लैडर कंट्रोल में, ठीक है, या फिर हमारे कोऑर्डिनेशन में हमें प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, मूवमेंट जो बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होती है ना, प्रॉब्लम होती है। एंड इट इज बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसिस. इट इज अ रेयर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा. इन दिस टाइप ऑफ meningitis are push out the between the opening in the vertebra, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मेनिंजाइस होता है लेयर, तो ये करती है पुश आउट हो जाती है टू वर्टिब्रा के बीच में. द मेम्ब्रेन कैन बी यूजुअली रिमूव ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो इस मेम्ब्रेन को हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है। सिम्टम्स में रहता है सिमिलर क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेम
ओपनिंग होता है जैसे क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में था कि इनकोऑर्डिनेशन था, या फिर बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस था, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स अराइजेस होती हैं। Myelomeningocele. So myelomeningocele is the most common cyst type of spina bifida. The spinal cord remain open along the several vertebrae, resulting in the partial or complete paralysis of the part of the body below the spinal opening. तो जहाँ से इसमें कहते हैं स्पाइनल ओपनिंग रहती है, ठीक है, और जो स्पाइनल ओपनिंग के बिलो का पार्ट है उसमें क्या होता है, पार्शियली कंप्लीटली पैरालिसिस होता है। The membrane and the spinal cord create a sac. जहाँ पे ओपनिंग होती है वो क्या करती है, एक सैक डेवलप करती है जिसमें कि थिन मेम्ब्रेन मेनिंजस लेयर क्या होती है, कवर अप करती है उसमें, ठीक है। बाकी क्या होता है, पार्ट उसका रिमेन ओपन रहता है जो क्या करता है, कैरी करता है आउटर इन्फेक्शन को या फीटल इन्फेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स. So what are the causes of the folic acid deficiency? Previous pregnancy, neural tube defect, it may be family history. Okay. Then the use of the anti-seizures medication. The mother ने during time of pregnancy anti-seizures medications दिया है. Diabetic, obesity, then high temperature in early pregnancy, and the excessive use of alcohol. Okay. Now the clinical manifestation is dimple, depression, birthmark, hairy patch over the affected area, abnormal trough of hair, loss of bladder and bowel control, partially or completely lack of sensation, weakness of the leg, hip, feet of newborn. So these are the manifestations. The build-up fluid inside the skull, hair at the back part of the pelvis, learning or disability. And the diagnostic evaluation is quadruplet screening. Quadruplet screening जो होती है, ब्लड टेस्ट स्क्रीनिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम इसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैंने आपको बताया था मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो हम लोग करते हैं 16 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन में करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई के बेबी का। देन मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है, कि ओपनिंग है फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा, सर्जिकल इज यूजुअली हेल्पफुल टू क्लोज द स्पाइना बाइफिडा गैप एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन। जो गैप है उसको हम क्लोज करके इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रीनेटल सर्जरी इज आल्सो एन ऑप्शन। अब क्या एंटीनेटल टाइम पे भी हम स्पाइना बाइफिडा की सर्जरी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। नाउ द फिजिकल थेरेपी, ओके, देन द इफ द इन्फेंट हैज हाइड्रोसेफेलस, अगर हाइड्रोसेफेलस है बेबी को तो हम वेंटिकुलर पेरिटोनियल स्टंट डाल के उसमें से स्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैथेटर शुड बी पुट टू हैव द रेगुलर ब्लैडर फंक्शन। कैथेटर हम डाल सकते हैं जब तक कि उसके रेगुलर ब्लैडर फंक्शन नॉर्मल ना हो जाए। इन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में एंटीबायोटिक हम दे देंगे प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजाइटिस, अगर ओपन सैक प्रेजेंस है तो। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्री देंगे प्रेग्नेंट वुमेन को। देन ऑक्सीब्यूटानाइन टू प्रिवेंट द इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो जनरली जो ऑक्सीब्यूटानाइन होता है वो हमें ब्लैडर और बाउल की मसल को करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, रिड्यूस करता है मसल स्पाज्म को, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिजिकल थेरेपी इज आल्सो वन ऑफ द मेथोडिक प्रिवेंट द मसल फ्रॉम वीकनेस। तो उसको फिजिकल थेरेपी देते हैं हम, जैसे हैंड लेग्स का मूवमेंट कराया हमने, सो दैट की जो मसल्स वीकनेस से प्रिवेंट हो सके। जैसे हमारे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, वो लोग देते हैं, क्या करते हैं, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जो बेड रिडन पेशेंट होता है, जो मूवमेंट नहीं करता है, जो इमोबिलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। Now this is the complete this portion. If you have any query, you will free to ask. Thank you.